thank you, Sunil and Nina, for doing this and for introducing me. Uh, I just basically want to say that for over 20 years, I have done nothing else. This is not a hobby that I do once in a while, but my full-time life, passion, resources, mind, energy is based on pursuing this idea of understanding my dharma, my civilization, both as a practitioner to enrich my own life and to do seva to society and to my nation. Now, this is everybody has to have their own swadharma, which means swadharma means my dharma, my calling, my passion, what is my role, and this is what came natural to me. And under the guidance of my guru, I started following this, and it's taken me 20 years to evolve my ideas, and I'm still evolving, learning, and moving forward. So each person has to find their own swadharma. What is your calling for your own life enrichment and for enriching your country and society at large? And for different people, it is different. Everybody doesn't have to do the same thing that I'm doing, but people have to look for their own calling and follow it. So this has been totally non-political, as Sunil said. It is completely an intellectual and spiritual and kind of practice of mine. And this is not only for my own private life, but also goes into my service for community. I have never supported any political person or anybody, any individual. My interventions have been mainly in the intellectual dimension. It is not only academic, but also media, a lot of public intellectuals, a lot of think tanks, a lot of NGOs. They're all involved in a certain type of discourse about who we are. And this discourse has been largely planted in their minds from Western, from non-Indian type of intellectual sources. And these imported discourses, imported theories like subaltern studies, Marxism, feminism, all this minorityism, this kind of a thing has become very popular and fashionable in India. There are institutions that reward it, that fund it. There are mechanisms in place. There are large training academies in India and overseas where such intellectuals are given training. And this is what I call the Breaking India Forces. हमने एक पुस्तक लिखी है Breaking India, यानी भारत को तोड़ने का षड्यंत्र. ये भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र है, Breaking India Forces जिसको हम कहते हैं, this includes a large number of different kind of people. ये सिर्फ एक दो तरह के लोग नहीं है, और ये जो लोग हैं भारत में भी हैं, बाहर से बाहर भी हैं, और इनका वो आपस में जुड़े हुए हैं, और इनका एक ग्लोबल एक तरह की अलायंस है. और ये बहुत तरीकों से, बहुत अंडर मेनी नेम्स एंड मेनी ब्रांड्स एंड मेनी आइडियोलॉजीज ये लोग काम करते हैं. तो ये जो पुस्तक हमने लिखी ब्रेकिंग इंडिया, इट इज एन आई ओपनर. उसके बाद हमने और भी पुस्तकें लिखी हैं कि इसका क्या इलाज है, कैसे क्या करना चाहिए. तो ये जो हमने रिसर्च की, और मोर देन 200 टॉक्स एंड लेक्चर्स, एंड ये वो हमने 200 to 250, 300 हमने यूट्यूब में भी डाले हैं. ये जो हमने काम किया, इससे हमको ये यकीन हुआ कि ये समस्या बहुत गंभीर है. एंड आई फील कि ये जो अब इलेक्शन आने वाला है, दिस कुड बी द लास्ट चांस. दिस इज द लास्ट चांस फॉर इंडिया टू बी सेव्ड फ्रॉम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस. अभी वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो गई है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्ट्रांग है, सेंट्रल इंडिया में माओइस्ट की तरह से, कश्मीर में ये जिहादिस्ट की तरह से, साउथ इंडिया में ये जो इवेंजलिस्ट है और ये जो द्रविडियंस को सेपरेट करना चाहते हैं, ये जो सारी दलित मूवमेंट है, ये सारे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं. और ये आपको शायद लगे कि ये तो अलग बात है, यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया और वहां पर कुछ और इंसिडेंट हो गया, वो भी उससे अलग है. लेकिन ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है. आपको ये कंफ्यूज करने के लिए लोग बताते हैं कि ये अलग अलग चीजें हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस, स्पोरेडिक, इंडिपेंडेंट चीजें हैं. लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब जुड़े हुए हैं. एक स्ट्रेटेजी है, एक तरह का ग्लोबल कुरुक्षेत्र है. ये कुरुक्षेत्र है जिसमें अब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है. कुरुक्षेत्र आज के जमाने में एक हरियाणा में छोटा टाउन नहीं है, जैसे पहले एक मैदान था हरियाणा में. अब ये कुरुक्षेत्र ग्लोबलाइज्ड है, सारे ग्लोबल में एक कुरुक्षेत्र हो रहा है. और इसको आपको पहचानना है, आपको इसकी परीक्षा करनी है. इसमें हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप ही परीक्षा करनी है, अपनी दृष्टि से करनी है, और इसको पहचानना है, और उसके ऊपर आपने कुछ करना है, अपना स्वधर्म के मुताबिक कुछ इसके बारे में करना है. तो ये हमने जो देखा
उसके कारण हमने सोचा कि ऐसे चेंज होना चाहिए इलेक्शंस में कि इस ये जो ब्रेकिंग इंडिया की फोर्सेस हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इसको रुकावट करने के लिए कुछ चेंज होना चाहिए। इसीलिए हमने मोदी जी को सिलेक्ट किया कि हम मोदी जी को बैक करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी पार्टी को बैक करना चाहते हैं या किसी रिलीजन को बैक करना चाहते हैं। हम धर्म को और जो भारतीय संस्कृति है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये मोदी जी को सपोर्ट इसलिए दी क्योंकि मोदी जी ही हमारे मुताबिक ऐसे लीडर हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा है, जिनका एक्सपीरियंस ऐसा है, जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, जिनका जो क्लीन एथिकल धार्मिक जो का वातावरण है वो ऐसा है कि वो ही ये इस समस्या को संभाल सकते हैं। अब देखिए, जो अरब स्प्रिंग है, अरब स्प्रिंग एक नाम है जो मिडल ईस्ट में यंग लोगों ने सोशल मीडिया से अपनी पुरानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। तो कई लोग इंडिया में सोचते हैं कि अब ये इंडियन स्प्रिंग हो रहा है, अब ये जो इलेक्शन होगा स्प्रिंग टाइम में ये इंडिया स्प्रिंग होगा और इसमें हम पहले जो भी हमारे लीडर्स थे उनको ओवरथ्रो करेंगे, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो अरब स्प्रिंग हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको एनकरेज किया, उसके साथ वहां बहुत केओस हुआ। जो पहली गवर्नमेंट थी वो करप्ट थी, उसको निकाल दिया। लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ कि अब वो वहां पर बिल्कुल उनका डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि जो पहले लोग थे उनको निकालने के लिए तो वो तैयार थे, सब कुछ उन्होंने किया, बाहर के लोगों ने उनको हेल्प भी की कि उन लोगों को निकालो। लेकिन जब वो निकल गए तो जो न्यू गवर्नमेंट बनानी थी, नया तरीके का ऑर्डर लाना था, नई तरीके की सरकार, नई तरीके की सोसाइटी को तैयार करना था, उसमें वो लोग नहीं सक्सेसफुल नहीं हुए। सो इसका मतलब आप ब्रेक कर सकते हैं, जो गलत चीज है उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज है उसको आप जोड़कर बनाना भी चाहिए। आप यदि आप कांग्रेस की गवर्नमेंट को निकाल दें और कोई दूसरी ऐसी गवर्नमेंट आए जो मेकिंग इंडिया ना कर पाए, जिनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे नई तरह की चीज चलानी है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट नहीं चलाई, उनमें कोई एक विचार भी धारा भी अच्छी नहीं है, ठीक तरह से नहीं है, तो चाहे उनके जितना मर्जी मोटिव अच्छे हो, चाहे वो जितने मर्जी क्लीन हो, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस ना हो तो वो काम लायक नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अरब स्प्रिंग हुआ उससे दो चीजें आपको सीखनी है। एक तो है कि जो गलत था उसको तोड़ा उन्होंने, वो तो ठीक बात, लेकिन जो अच्छी चीज उन्होंने लानी थी वो नहीं ला पाई। तो हमको ये भी डर है कि इस इलेक्शन में ऐसे ना हो कि जो पुरानी सोसाइटी, पुरानी जो गवर्नमेंट है उसको तो निकाल दे, पर लेकिन ऐसी कोई कंफ्यूजन आ जाए, ऐसी फ्रेगमेंटेड सिचुएशन हो जाए कि खूब सारी छोटी छोटी पार्टीज आ जाए और फिर इंडिया की जो ब्रेकिंग इंडिया की बात है वो और आगे और खतरनाक हो सकती है। इसलिए एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल पार्टी रूल से स्ट्रॉन्ग जो लीडर है वो चेंज कर सकता है, उसके बिना वो चेंज नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमने मोदी जी को चुना। और अब हम चाहते हैं कि हमको सुनील जी और नीना जी कोई हमको प्रश्न पूछें, क्योंकि बात तो बहुत समय से हम करना चाहते हैं, लेकिन हम आई वेट फॉर हिज क्वेश्चंस।